Okay, so today we are starting with the annuities and we are looking at different questions. For example, if the question is what quarterly payments for 6 years would accumulate to 22,000 if the nominal interest rate of 7% is compounded quarterly. Yes, so how this would be done? Yes, any idea? You can tell me in the chats. Okay, so this can be done. For example, it would accumulate to 22,000, right? So we can say that this amounts accumulates to 22,000. And what is the amount? It is basically a summation. And if you are not sure that what are the quarterly payments, so what quarterly payments we are taking them as X for 6 years, but the payments are quarterly. So it means that there are 4 payments a year. If I am making it a quarter, so it would be 24 payments. Okay. And what is the rate of interest then? The nominal rate of interest. The nominal rate of interest is given to us is 7%. So what is the rate of interest that we would be using in this annuity? Yes. So the rate of interest would be 7 divided by 4 because it's just nominal, right? So the rate of interest would be 1.75%. So calculating it at 1.75%, if you recall, right, this is what this can be written as. Either you can use the formula, right, substituting 24 over here and I instead of I we are putting 1.75%. So putting the values, so we have what number of years is equals to 24, rate of interest is equals to 1.75, 22,000 is the future value, right? Right, and after computing it, we are getting a value of X, that is the payment. We are getting 74,745.48. This is the value that we are getting. Okay, sir, this is a relatively easy question. How about if we go for some difficult questions? Okay, let's have a look. This is a question. Shahista and Shaheen shared inheritance. This is inheritance. The writing might be illegible. Equally, Shahista bought 10-year annuity due, right? With annual payments of 2,500 each. Shaheen puts it in an investment fund with an EAR of 9%. 2 years later, she bought 15-year annuity immediate with annual payments of Z. This is Z. The PV is determined using EAR of 8% and we have to find Z. Just write the question. Yes, how we will be solving this question? Yes, how we will be solving this question? That Shaista and Shaheen shared inheritance equally. And then Shaista bought a 10-year annuity due with annual payments of 2,500 each.
Shaheen then puts it in a fund with an EAR return of 9%. 2 years later, she bought a 15-year annuity immediate with annual payments of Z. The PV is determined using an EAR of 8%. Right? So there are two things over here, right? The EAR is different, right, of the PV, and it is different for the fund. So how you will be solving this? Yes. Any idea? Okay, if I want to take the PV of this for 10 years, 2500, right? For 10 years and 2500. So I am saying that 2500 annuity due for a period of 10 years. And what is the rate of interest? Rate of interest, if I am taking the PV, it is 8%. This is a notation. Okay. This is the notation. Then what happens that first of all, Shaheen has put 2 years later, she bought a 15-year annuity. Before that, the fund was at 9%. Right? So what I will be doing, I will be taking this payment further. इसको मैं 2 साल आगे लेके जाऊंगा और क्या करूंगा, एक्यूमुलेट करूंगा. इसको क्यों एक्यूमुलेट कर रहा हूं मैं? इसको मैं इसलिए एक्यूमुलेट कर रहा हूं ताकि ये पीवी के ऊपर आ जाए, उसके बराबर आ जाए. देखिए ना, इसको अगर मैं इसके ऊपर टाइमलाइन बनाऊं, तो अगर ये शाहीन की टाइमलाइन है, तो शाहीन बेसिकली क्या कर रहा है? शाहीन ने यहां से उठाया 2 साल तक की जो पेमेंट है वो फंड से ली, और उससे आगे जो है उसने वो 15 साल की एन्युटी ली. सही? तो उसको अगर मैं 15 साल पहले लेके आता हूं, उसको मैं अगर 15 साल पहले लेके आता हूं, सही, तो उसको जब मैं 15 साल पहले लेके आ रहा हूं, तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर 9% के ऊपर ये जो एन्युटी है ये एक्यूमुलेट हो गई होगी. तो इसलिए मैं इसको 1.09 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. अब पेमेंट क्या निकालनी है मुझे? जेड. जेड वो पेमेंट है, जेड वो पेमेंट है ओके. जेड वो पेमेंट है मेरे पास जो कि उसने 15 साल तक पेमेंट की. कौन सी एन्युटी है? एन्युटी ड्यू है फॉर 15 ईयर्स एट अ रेट कितना है? 8% के ऊपर पीवी चाहिए, तो 8% का रेट. सही. इसको मैं जरा सही से लिख रहा हूँ. क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, लिख लिया. शाइस्ता और शाहीन ने इनहेरिटेंस की इक्वली. 10 ईयर की एन्युटी ड्यू ली इसने. ड्यू के लिए मैंने ये फॉर्मूला, एन्युटी ड्यू का बिगनिंग वाली जो होती है, पेमेंट है 2500 ईच ईयर. शाहीन ने जो है वो फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, 9% का EAR है. 2 इयर्स लेटर उससे 15 साल की एन्युटी उठाई है इमीडिएट. एनुअल पेमेंट है Z, और EAR कितना है इसके ऊपर? 8%. तो हमें क्या फाइंड करना है? Z. इसको जरा मैं सही से लिख लेता हूँ. ये आखिर में इक्वेशन क्या बनती है? ये हमारे पास बनती है 2500 A 2500 ये थी, ड्यू थी, और कितने इयर्स है? कितने इयर्स है भाई? 10 इयर्स. सही हो गया. अच्छा, 10 इयर्स के ऊपर था. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट था 0.08. इसको मैं 2 साल आगे लेके गया हूं. सही. इट कैन बी रिटन एज, और Z एक पेमेंट ली. Z ने 15.08. अब जरा Z कैलकुलेट करें, क्या आ रहा है आंसर? मुझे आप चैट में बताएं जरा.
मुझे जरा चैट में बताएं इसका आंसर क्या। जी, तो क्या आंसर आ रहा है इसका। अच्छा, अगर हम देखते हैं इसको, सही, इसको मैं चेक करता हूं, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास z जो है इट इज इक्विवेलेंट टू, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, उसको उससे किया, तो z आ रहा है 21,525.07 डिवाइडेड बाय 8.55948 और मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 2514.76। ये देख लीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है एग्जाम के अंदर। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जामिनर देता है तो वो इस तरीके का दे सकते हैं। इसमें दो रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट आ रहे हैं, एक ये 9% का रिटर्न आ रहा है और ये 1% का रिटर्न आ रहा है। दोनों जो है वो रेट डिफरेंट है, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये आप अटेम्प्ट कर सकोगे एग्जाम में। अच्छा, आप जरा एक और से डिफिकल्ट क्वेश्चन आप दिखाएं हमें। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो ये, नदीम और वसीम ने 100 रुपए का डिपॉजिट किया एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 40 इयर्स। सही, इसको बाइफरकेट करके आप कर सकते हैं। 40 इयर्स तक नदीम ने भी किया, वसीम ने भी किया। सही, नदीम एंड वसीम मेक अ डिपॉजिट ऑफ 100 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 40 इयर्स। इसको कैसे लिखेंगे आप। भाई मैं ये कहता हूं कि 40 इयर्स तक किया तो उसके बाद क्या हो जाएगी, इसकी समेशन हो जाएगी कितने साल तक, 40 इयर्स तक। ठीक हो गया। फ्रॉम 41st ईयर, यानी जो नेक्स्ट ईयर था, नदीम ने एक अमाउंट ली एक्स। सही है, नदीम ने एक अमाउंट ली एक्स और उस एक्स से वो निकाले उससे पैसे 15 साल तक। सही है, 15 साल तक नदीम ने पैसे निकाले और वसीम ने पैसे निकाले वाई 15 इयर्स तक, मेकिंग द फंड जीरो, यानी दोनों का जो फंड था वो पूरा जीरो हो गया इसके बाद, विड्रॉल पेमेंट्स के बाद। नदीम के फंड ने जो अर्न किया वो किया 8% के ऊपर, वसीम के फंड ने जो अर्न किया वो किया 10% के ऊपर। हमें वैल्यू चाहिए y माइनस एक्स। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि शायद एक ही क्वेश्चन आए एग्जाम में। अगर एग्जामिनर को आपको टेस्ट करना है तो वो इस तरीके का आपको एक ही क्वेश्चन दे देगा जो के लिए आपके लिए डिफिकल्टी पैदा करेगा। इसको कैसे करेंगे जरा कोई बताएगा मुझे, आप चैट में बता सकते हैं। जी, सबसे पहले नदीम का मैं पेमेंट बनाता हूँ। नदीम की जो एक्यूमुलेशन होगी 40 साल तक, वो कितनी बनती है 100 इंटू 40। तो ये किसकी होगी, नदीम। या तो दोनों का अलग अलग चला है, नदीम मैं अलग कर लेता हूँ, वसीम अलग। वसीम की भी एक्यूमुलेशन क्या होगी 100 इंटू एस इंटू 40। एक्यूमुलेशन तो दोनों की सेम चल रही। सर अगर दोनों की सेम है तो फिर विड्रॉल्स का कैसे पता चलेगा, विड्रॉल से कैसे पता चलेगा। हाँ, विड्रॉल्स को किस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। जी, विड्रॉल्स को किस तरह से लिखोगे। विड्रॉल्स का मैं इसके ऊपर लिखता हूँ कि मैं ये कहता हूँ इसका जो विड्रॉल है वो क्या है, 15 साल तक विड्रॉल किया है। सवाल जरा देखते हैं हम। सवाल इतना बड़ा, उसमें डेटा आप ये देखें, 15 साल तक विड्रॉल किया फ्रॉम 41st ईयर। तो सर इस 41st का कोई काम है नहीं, इसका काम ये है कि नेक्स्ट ईयर से बाद उसने विड्रॉल स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो ए कितने साल तक विड्रॉल किया, 15 साल तक। तो सर मुझे एक बात तो ये समझ आ रही है कि ये जो विड्रॉल है ये किसके ऊपर है। फिर इसमें अगर 15 साल किया तो ये वाई की पेमेंट है, इसका भी विड्रॉल कितने साल होगा, 15 साल होगा।
ठीक है, अगर इसका विड्रॉल जो है वो 15 साल तक था, तो इस वाली इक्वेशन का भी जो विड्रॉल है वो कब तक है, वो 15 ईयर्स तक है। लेकिन फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क ये आ रहा है कि बेटा ये है 8% के ऊपर और ये है 10% के। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। सही, इस क्वेश्चन को देख लें आप, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अगर आज सिंपल लेके चले तो ये आसानी से हो जाएगा। बस ये है कि इसमें ये चेक करना था कि 41st का इसमें कोई काम नहीं पड़ रहा था। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट करें। S40 इंटू 100 और A15 की क्या वैल्यू आ रही है, कोई मुझे बताएगा? S40 इंटू 100, S40 इंटू 100, जरा सवाल देख लें आप। ये सवाल है 40 ईयर्स तक हुआ, 15 साल तक एक्यूमुलेशन की, 15 साल 40 ईयर्स तक एक्यूमुलेशन की, S40 हमने कर दिया। 41st ईयर से 15 साल तक दोनों ने अपना निकाला। दोनों का जो फंड का जो डिफरेंस था वो कितना आता है, 8 का 8% पे था, एक का 10% के ऊपर था। अच्छा, जरा कोई मुझे बताएगा S40 की क्या वैल्यू आ रही है? हाँ, S40 की क्या वैल्यू है भाई? 100 इंटू S40 8% के ऊपर। S40 का फॉर्मूला सबको पता ही, 1 प्लस आई से डिवाइड बाय आई भी है नीचे। नहीं पता। S40 का जो फॉर्मूला है बेसिकली वो क्या है आपके पास, 1 प्लस आई की पावर n। सही, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ओवर आई Sn। अब आप इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन कर दें। फॉर्मूलाज जो है वो तो सब आपको पता होने चाहिए, वो तो एक बेसिक ही होती है। सही है, हर चीज को हम कैलकुलेट करने के 2 से 3 तरीके हैं, शॉर्टकट्स भी हैं। सही है, फॉर्मूलाज में एक दफा लिख देता हूँ। ए एन का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 1 माइनस वी एन ओवर आई। सही है, v क्या होता है, v क्या होता है भाई, 1 प्लस आई की पावर माइनस 1। तो वी एन क्या होता है बेसिकली, 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। सही, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एस एन। एस एन कैन बी रिटन एज 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 ओवर आई। ये देखें आप, जो ये है ए एन जो है और एस एन जो है, दोनों के नीचे आई आता है। नेक्स्ट वी हैव एस डबल डॉट एन। एस डबल डॉट एन कैसे लिखा जाएगा, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 ओवर डी हो जाएगा। और ए डबल डॉट एन जो है वो मेरे पास कैसे आएगा, 1 प्लस आई, सॉरी 1 माइनस वी एन ओवर डी। सही, इन दोनों को सॉल्व किया आपने तो आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है, आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 25905.65 डिवाइडेड बाय 858.5594 कर लें। तो मेरे पास इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है x का, वो आ रहा है 3026.55। सही, 3026.55 आ गया। तो मेरे पास जो x आ गया वो कितना आ रहा है, 3026.55। और मेरे पास जो y आ गया वो कितना आ रहा है, y मेरे पास आ रहा है 5818.93। y को क्योंकि हमने 10% के ऊपर किया था तो y की ये वैल्यू डिफरेंट आ रही है, वरना इक्वेशन जो थी वो दोनों की सेम थी। सही, इक्वेशन जो थी वो दोनों की सेम ही बन रही थी। ये इसकी इक्वेशन थी, ये 8% के ऊपर था,
और ये 10% के ऊपर था दूसरा y वाला। सही है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, x की वैल्यू आ गई। हमसे सवाल में क्या पूछा, अब स्टूडेंट यहाँ पे या तो x, एक ऑप्शन में हमारे पास x आ जाता है, एक में y आ जाता है, तो वी आइदर राइट दिस ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं या ये करना। हालांकि क्वेश्चन पूछा है y माइनस एक्स चाहिए, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स बड़ा काउंट कर जाती है। इसमें से माइनस किया हमने 3026.55, our final value is 2792.38। ठीक है, ये सवाल जरा एक बार और देख ले। देखिए, नदीम और वसीम ने 100 रुपए का डिपॉजिट किया 40 साल तक। आफ्टर मेकिंग ए डिपॉजिट ऑफ, इतना ज्यादा डिपॉजिट करने के बाद क्या हुआ, 40 ईयर्स तक डिपॉजिट हुआ, 41st ईयर से 15 दोनों ने विड्रॉ करना स्टार्ट किया फॉर 15 ईयर्स। जब विड्रॉ किया तो EAR जो था वो 8% था, वसीम का जो था वो 10% था। सही है, हमने इसको चेक कर लिया, हमने यहाँ पे इसको रखा और इसके ऊपर से हमने ये कैलकुलेशंस की। सही, इसके ऊपर से हमने ये कैलकुलेशंस की और आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशंस हमें ये पता चल गया कि दोनों के अंदर जो इक्वेशन है वो तो सेम बनती है, एक 10 पे एक 8 पे, लेकिन जो वैल्यूज आ रही है वो डिफरेंट है। y माइनस एक्स क्या हमारे पास ये आ गया एक इक्वेशन, ये हमारे पास का आंसर आ रहा है। प्लीज ये क्वेश्चन देख लीजिएगा एग्जाम में, इसका बहुत ज्यादा चांस है कि टेस्ट हो। हमने ये पहले डिस्कस कर लिया था, ये वाला एक इक्वेशन और एक हमने ये इक्वेशन डिस्कस की थी। सही है, होपफुली यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस जो है वो नेक्स्ट वीक और वीक में 1 या 2 क्लासेस रखेंगे प्रैक्टिस रिवीजन की, जब तक आप लोगों को पेपर हो। दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन।